So this is the very first page of the draft TIA 2020. We can see here it is written that the central government proposes to issue following notification in exercise of the powers conferred by subsection 1 and clause 5 of subsection 2 of section 3 of Environment Protection Act 1986. Now let's see. Section 3 in the Environment Protection Act 1986. Subsection 1. Subject to the provisions of this Act, the central government shall have the power to take all such measures as it deems necessary or expedient for the purpose of protecting and improving the quality of the environment and preventing, controlling, and abating environmental pollution. Next, we can see here the subsection 2, and we have to scroll down to its clause 5. In particular, and without prejudice to the generality of the provisions of subsection 1, such measures may include measures with respect to all or any of the following matters, namely restriction of areas in which any industries, operations or processes or class of industries, operations or processes shall not be carried out or shall be carried out subject to certain safeguards. तो इस एक्ट में हम देख रहे हैं कि एनवायरनमेंट को इम्प्रूव एंड प्रोटेक्ट करने के लिए मेजर लेने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को ही है। तो फिर ये क्या ड्राफ्ट के 29 पेज पे डीलिंग ऑफ वायलेशन केसेस के अंडर लिखा हुआ है वायलेशन को कौन कॉग्नाइज कर सकते हैं सुओ मोटो एप्लीकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट। नाउ लेट्स सी व्हाट डज इट मीन बाय सुओ मोटो ऑन इट्स ओन मोशन। मतलब वायलेटर खुद ही अगर बोलेंगे कि मैंने वायलेशन किया है तभी माना जाएगा कि हाँ वायलेशन हुआ है। लेकिन हम अभी देखे हैं 1986 एक्ट के अनुसार ये मेजरमेंट गवर्नमेंट को ही लेना है और कोई वायलेटर खुद आके अपना गुनाह कबूल कर लेंगे कि हाँ मैंने वायलेशन किया है ये कोई कैसे को सोच सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द वेरी फर्स्ट पेज ऑफ द ड्राफ्ट TIA 2020. Here we can see it is written that any person interested in making any objections or suggestions on the proposal contained in the draft notification may forward the same in writing for consideration of the central government within the period. So, इस वायलेटर फ्रेंडली ड्राफ्ट को रोकिए लॉ बनने से मेल भेजिए to the email address at eia2020-moefcc@gov.in. इस साल अप्रैल के 3 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है concept of an ex post facto environmental clearance is in derogation of the fundamental principles of environmental jurisprudence detrimental to the environment and could lead to irreparable degradation. Now let's see what does it mean by post facto. Something that influences events in the past. यानी कि जो घटनाएं घट चुके हैं उनको प्रभावित करना affecting something that's already happened. Scoping is the very first step of the EIA process. Now let's go to the page number 7 of this draft TIA 2020. In subclause 49 under clause 3, scoping is defined as the process of determining the terms of reference by the regulatory authority for the preparation of EIA report for the project seeking prior environmental clearance. यानी कि जब प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए तब उस प्रोजेक्ट के EIA रिपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस डिटरमाइन करने का प्रोसेस है स्कोपिंग. लेट्स गो बैक टू द पेज नंबर 16 ऑफ दिस ड्राफ्ट TIA 2020. अंडर क्लॉज नंबर 12 it is written that all projects listed under category B2 of the schedule shall not require scoping. Now let's go to the page number 37 of this draft TIA 2020. Here we can see the schedule. इस टेबल में सारे प्रोजेक्ट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. 1 नंबर कलम पे है प्रोजेक्ट नंबर, 2 नंबर कलम पे है प्रोजेक्ट नेम, 3 नंबर कलम पे है कैटेगरी ए प्रोजेक्ट्स, 4 नंबर कलम पे है कैटेगरी B1 प्रोजेक्ट्स एंड 5 नंबर कलम पे है कैटेगरी B2 प्रोजेक्ट्स एंड 6 नंबर कलम पे कुछ स्पेशल कंडीशन रखा गया है. इस टेबल पे 43 प्रोजेक्ट आइटम्स लिस्टेड है. इतने सारे कैटेगरी B2 प्रोजेक्ट्स के स्कोपिंग नहीं होंगे, यानी
इतने सारे प्रोजेक्ट्स के EIA रिपोर्ट नहीं बनेंगे और इन प्रोजेक्ट्स के प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरेंस भी इशू नहीं होंगे। शेड्यूल के नीचे की तरफ एक नोट में लिखा हुआ है कि कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए जनरल कंडीशंस अप्लाई नहीं होंगे। नाउ लेट्स गो टू पेज नंबर 5 ऑफ दिस ड्राफ्ट EIA 2020. In subclass 30 under clause 3, general condition is defined as any project or activity specified in category B1 shall be appraised at the central level without change in the category if located in whole or in part in areas mentioned in A or B below. Under point A, we can see here protected areas, critically polluted area, eco-sensitive area, interstate or union territory. इन सब एरियाज के बाउंड्री से ओनली 10 किलोमीटर दूरी तक ही रेस्ट्रिक्शन रखी गई है फॉर द B1 प्रोजेक्ट्स इन द आइटम नंबर 3, 5, 32 एंड 33 ऑफ द शेड्यूल। और बाकी सारे B1 प्रोजेक्ट्स के लिए ये रेस्ट्रिक्शन जस्ट 5 किलोमीटर की दूरी तक ही है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये 5 नंबर आइटम इन द शेड्यूल, इसके B1 कैटेगरी के अनुसार 500 मेगावाट्स तक थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स भी इको सेंसिटिव एरिया से ओनली 10 किलोमीटर नजदीक में भी बन सकते हैं। दूसरे टाइप का भी एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसके लिए लिमिटेशन है ओनली 5 किलोमीटर की दूरी। आइटम नंबर 30, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सप्लोजिव, जो कि इको सेंसिटिव एरिया से ओनली 5 किलोमीटर नजदीक में भी बन सकते हैं। और बाकी प्रोजेक्ट्स लाइक माइनिंग, कोल वॉशरीज, केमिकल प्रोसेसिंग, मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज, हैलोजन प्रोडक्शन, एमोनिया प्लांट्स, एसिड मैन्युफैक्चरिंग एटसेट्रा भी इको सेंसिटिव एरिया से जस्ट 5 किलोमीटर नजदीक में भी बन सकते हैं। Under point B, we can see here severely polluted area and eco-sensitive zones के बाउंड्री के जस्ट बाहर ही अगर B1 कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स बने तो भी इनको अप्रूवल मिलेंगे। अब ये ड्राफ्ट EIA 2020 से बहुत पहले ही अगर सालों से विदाउट क्लियरेंस वक्जन गैस वेल या वाइजाग LG पॉलीमर जैसे प्रोजेक्ट्स चलते रहे और इतनी डिजास्टर भी फैलाते रहे, तो ये ड्राफ्ट EIA 2020 लॉ बनने के बाद इतने सारे प्रोजेक्ट्स अगर विदाउट क्लियरेंस रन करे तो कितने सारे डिजास्टर्स होने की चांसेस है। और ये सब डिजास्टर होने के बाद जस्ट कुछ फाइन के बदले में उनको क्लियरेंस यानी पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस दिया जाएगा। तो ये गया जनरल कंडीशंस। नाउ हियर वी कैन सी दैट कौन से प्रोजेक्ट्स में जनरल कंडीशंस अप्लाई नहीं होंगे। आइटम नंबर 9, 10F, 11B, 25, 38, 40, 41, 42 एंड 43 के ऑल कैटेगरी प्रोजेक्ट्स, रिवर बेड माइनिंग प्रोजेक्ट्स एंड अंडर एवरी आइटम ऑल कैटेगरी B2 प्रोजेक्ट्स में जनरल कंडीशन अप्लाई नहीं होंगे। इसके मतलब ये सारे प्रोजेक्ट सीवियरली पोल्यूटेड एरिया और इकोसेंसिटिव जोन के अंदर भी बन सकते हैं विदाउट क्लियरेंस एंड कुछ डिजास्टर होने के बाद इनको कुछ फाइन के बदले में पोस्ट फैक्टो अप्रूवल दिया जाएगा। तो ये गया क्लॉज नंबर 12 के अंडर फर्स्ट पॉइंट। नाउ वी कैन सी हियर इन द थर्ड पॉइंट इट इज रिटन दैट द स्टैंडर्ड TOR shall be issued to the following projects through online mode on acceptance of application within 7 working days without referring to appraisal committee by the regulatory authority. Now let's check what does it mean by standard TOR. TOR के full form है terms of preference. Now let's go to the page number 8 of this draft EIA 2020. In subclass 56 under clause number 3, terms of preference is defined as detailed scope prescribed by the regulatory authority for the project for the purpose of preparation of EIA report. Specific terms of reference means project specific or location specific terms of reference prescribed by the appraisal committee deemed necessary for the preparation of an EIA report. And standard terms of reference means standard terms of reference issued by the ministry from time to time for the preparation of the EIA report in respect of the project listed in the schedule. इसका मतलब specific terms of reference में ये जांच किया जाता है कि कोई particular location में कोई particular project बन सकता है कि नहीं, कोई इको सेंसिटिव एरिया या फिर जोन में कोई प्रोजेक्ट बनने से कितना इफेक्ट आएगा वो सब जांच किया जाता है, या फिर कोई बंजर जमीन पे अगर कोई प्रोजेक्ट बने तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा पर्यावरण पे। ये सब जांच लोकेशन स्पेसिफिक और प्रोजेक्ट स्पेसिफिक जांच किया जाता है स्पेसिफिक टर्म्स ऑफ रेफरेंस में, जो कि स्टैंडर्ड टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ये सब लोकेशन स्पेसिफिक और प्रोजेक्ट स्पेसिफिक जांच नहीं किया जाता है, वो सीधा मिनिस्ट्री से इशू होते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द स्कोपिंग ऑन पेज नंबर 16, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं
हैं कि कोई लोकेशन स्पेसिफिक और प्रोजेक्ट स्पेसिफिक जांच नहीं किया जाएगा। विद इन 7 वर्किंग डेज ऑनलाइन मोड पे स्टैंडर्ड TOR इशू होंगे। फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स में हम देख सकते हैं ऑल हाईवे प्रोजेक्ट्स इन बॉर्डर एरियाज। नाउ लेट्स सी व्हाट डज इट मीन बाय बॉर्डर एरिया। Let's go to page number 3 of this draft TIA 2020. In subclause 6 under clause 3, border area is defined as area falling within 100 kilometers aerial distance from the line of actual control with bordering countries of India. इसका मतलब सेंसिटिव एरियाज लाइक नॉर्थ ईस्ट के घने जंगले में भी प्रोजेक्ट स्पेसिफिक और लोकेशन स्पेसिफिक जांच नहीं होंगे, जो कि अभी तक साइंटिफिकली पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं हुआ है और हमें नहीं पता है उस जंगले के अंदर क्या है और क्या नहीं है। ऐसे सेंसिटिव एरिया में एनक्रोचमेंट के वजह से जूनोटिक कॉन्टेमिनेशन का बहुत ही चांस है, पैथोजन ट्रांसफर का बहुत ही चांस है और ये कोविड जैसे बीमारी, पैंडेमिक और एपिडेमिक्स फैलने का भी तो बहुत ही चांसेस है। अब अगला पॉइंट, all projects proposed to be located in notified industrial estates and which are not disallowed in such notification। वैसे देखने में तो ये पॉइंट सही लग रहा है, बट इसकी गलती इसके अंदर नहीं है, इस ड्राफ्ट के बाहर है। कभी कभी ऐसा भी बहुत बार देखा गया है कि कुछ कुछ ग्रासलैंड और वेटलैंड को भी नोटिफाइड इंडस्ट्रियल एरिया डिक्लेयर कर दिया गया है। अब अगला पॉइंट, ऑल एक्सपेंशन प्रपोजल्स ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैविंग अर्लियर प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरेंस। मतलब जो प्रोजेक्ट्स को पहले से ही एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल चुके हैं, वो प्रोजेक्ट जब एक्सपेंड करना चाहेंगे, वो नए जगह पे एक्सटेंडेड जगह के कोई भी प्रोजेक्ट स्पेसिफिक और लोकेशन स्पेसिफिक जांच नहीं होंगे। अब अगला पॉइंट, बिना प्रोजेक्ट स्पेसिफिक जांच किए और बिना लोकेशन स्पेसिफिक जांच किए ऑल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनेंगे। सो इस ड्राफ्ट TIA 2020 में हम देख सकते हैं कि बहुत सारे प्रोजेक्ट को EIA प्रोसेस के बाहर रखा गया है। उन प्रोजेक्ट्स के लिए प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरेंस की जरूरत नहीं होंगे। बहुत सारे प्रोजेक्ट पॉल्यूटेड एरिया या सेंसिटिव एरिया या प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर भी बन सकते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट को 7 दिन के अंदर अंदर ऑनलाइन में परमिशन मिल सकते हैं, जिन प्रोजेक्ट्स को कोई लोकेशन स्पेसिफिक और प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कोई स्क्रूटिनी नहीं होंगे। एंड जब कुछ डिजास्टर होंगे तो उसके बाद इन प्रोजेक्ट्स को पोस्ट फैक्टो अप्रूवल और पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस मिल सकते हैं। पब्लिक कंसल्टेशन अंडर क्लास 14 ऑफ दिस ड्राफ्ट TIA 2020। यहाँ पे कुछ फॉर्मल पॉइंट्स लिखे हुए हैं। नाउ हियर वी कैन सी दैट कहाँ पे पब्लिक कंसल्टेशन नहीं होंगे। पिछले 2 पार्ट्स में हमने जो डिस्कस किए हैं, आई थिंक उसके बाद यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिखाने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक एग्जाम्पल दिखाना चाहूंगी। इन ऑल द प्रोजेक्ट्स अंडर आइटम 31 ऑफ द शेड्यूल, द पब्लिक कंसल्टेशन शैल बी लिमिटेड टू द डिस्ट्रिक्ट्स वेयर द नेशनल पार्क और सेंचुरी और कोरल रीफ और इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया इज लोकेटेड। Let's check what does it mean by linear projects. Linear projects represent a large portion of the construction industry, highway, pipelines, etc. Let's check what are the linear projects under item 31 in the schedule. पाइपलाइंस। तो जहाँ जहाँ पे ऐसे इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया नहीं है, लेट्स से मेरे घर के एरिया, अगर मेरे घर के ही नीचे पाइपलाइन प्रोजेक्ट की प्लानिंग बने तो मुझे पूछा भी नहीं जाएंगे और मैं अपना घर छोड़ के रिफ्यूजी बनना नहीं चाहती, ये भी कोई सुनेंगे नहीं। नाउ लेट्स सी दिस पॉइंट, ऑल प्रोजेक्ट्स कंसर्निंग नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ इन्वॉल्विंग अदर स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस एज डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन सी सिचुएशन या फिर कौन सी कंडीशंस के अकॉर्डिंग कोई प्रोजेक्ट को स्ट्रेटेजिक कंसिडर किया जाएगा, उसके कोई डेफिनेशन इस ड्राफ्ट में नहीं दिया गया है। कोई भी स्ट्रेटेजिक डिक्लेयर्ड प्रोजेक्ट के कुछ भी इंफॉर्मेशन पब्लिक के सामने डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। Next, let's go to Appendix 1 regarding public consultation as referred here in subclass 5. Here we can see under notice of public hearing it is written that notice period of 20 days shall be provided to the public for furnishing their responses. इस ड्राफ्ट के अनुसार जिस प्रोजेक्ट में पब्लिक कंसल्टेशन एप्लीकेबल है, वहाँ पे पब्लिक कंसल्टेशन के लिए ओनली 20 डेज टाइम दिया गया है। अब कोई प्रोजेक्ट कितना खतरा बन सकता है, कोई प्रोजेक्ट का कितना इम्पैक्ट बन सकता है, ये सब डिटरमाइन करने के लिए, समझने के लिए, कंसल्ट करने के लिए साधारण लोगों के लिए, जो लोगों को ज़्यादा पता नहीं होते, गहरी चीज़, साइंटिफिकली चीज़, टर्मिनोलॉजी, टेक्निकल चीज़ जो लोगों को पता नहीं होते हैं, उन लोगों के लिए क्या ये 20 डेज पीरियड काफ़ी है? Whereas in EIA 2006 ये पीरियड 30 डेज के थे, जो भी काफी नहीं था और उसको और भी कम करके ओनली 20 डेज कर दिया गया है इन दिस ड्राफ्ट EIA 2020। पेज नंबर 29 में हम देख चुके हैं, यहाँ पे भी पब्लिक कंसल्टेशन रिस्ट्रिक्टेड कर दी गई है। इन डीलिंग ऑफ वायलेंस, प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट या गवर्नमेंट के लोग ही बता सकते हैं कि वायलेशन हुआ है कि नहीं। कोई भी कॉमन पीपल इंक्लूडिंग साइंटिस्ट, बायोलॉजिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट, एनी स्पेशलिस्ट का कहना यहाँ पे वैलिड नहीं होंगे।
Under clause 3 in subclause 60, violation is defined as cases where projects have either started the construction work or installation or excavation whichever is earlier on site or expanded the production under project area beyond the limit specified in the prior EC without obtaining prior EC or prior EP as the case may be। यानी कि प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरेंस के जरिए जितना जगह मिले है किसी प्रोजेक्ट को उस जगह के बाहर जाने की बात की गई है यहाँ पे वायलेशन के डेफिनेशन पे। लेकिन उस प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरेंस के हिसाब से जितना तक पोल्यूशन हो सकता है, जितना तक सुएज निकल सकता है या फिर जितना तक दूसरा एक्टिविटी हो सकता है जो कि एनवायरमेंट के लिए हानिकारक है, वो लिमिट एक्सीड करने की बात यहाँ पे नहीं की गई है इस वायलेशन के डेफिनेशन में। ये वायलेशन के डेफिनेशन भी इस ड्राफ्ट टीआईए 2020 में नैरो कर दिया गया है। तो कुछ प्रोजेक्ट में अगर उस लिमिट के बाहर एमिशन होता रहे, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बढ़ता रहे और एनवायरमेंट तक हानि पहुंचे तो उसको वायलेशन कंसिडर नहीं किया जाएगा। Under clause 20 in subclause 4 it is written that the yearly compliance report shall be submitted, whereas according to EIA 2006 ये रिपोर्ट हाफ ईयरली भेजना था जिसके मॉनिटरिंग कम करके वंस इन ए ईयर कर दिया गया है इन दिस ड्राफ्ट टीआईए 2020। मॉनिटरिंग कम करके एनवायरमेंटल क्लियरेंस की वैलिडिटी भी ज्यादा कर दी गई इन दिस ड्राफ्ट टीआईए 2020। अंडर क्लॉज 19 वी कैन सी हियर इट इज रिटन दैट एक बार एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल जाने के बाद 50 इयर्स तक माइनिंग प्रोजेक्ट्स चल सकते हैं। उसके बीच में कुछ भी चेंजेस हो, कुछ भी लैंडस्लाइड हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी डिजास्टर हो, 50 इयर्स तक वही पहले का क्लियरेंस वैलिड रहेगा। सेम एज हम यहाँ पे देख सकते हैं रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स एंड न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए ये वैलिडिटी 15 इयर्स तक कर दी गई है। इसके बीच में कुछ भी एक्सीडेंट हो या न्यूक्लियर प्लांट का रेडिएशन बढ़ जाए या फिर कुछ भी हो, वो पहले का एनवायरमेंटल क्लियरेंस ही वैलिड रहेगा टिल द 15 इयर्स एंड बाकी सारे प्रोजेक्ट्स के लिए 10 इयर्स। Under clause 15 in subclause 7 it is written here that no fresh studies shall be sought by the appraisal committee at the time of appraisal unless new facts come into the notice of the appraisal committee and it becomes inevitable to seek additional studies from the project proponent and same shall be clearly reflected in the minutes of the meeting। ऐसे भी बहुत सारे फैक्ट्स रह सकते हैं जो कि नजर में ना आए और जिस लोकेशन में प्रोजेक्ट बनने वाले हैं उस लोकेशन में भी बहुत सारे एनवायरमेंटल चेंजेस हो सकते हैं सिंस द लास्ट स्टडी, सो द फ्रेश स्टडी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। अब तक हम बहुत सारे डिस्कस कर चुके हैं ऑन दिस ड्राफ्ट टीआईए 2020। नाउ इट्स योर टर्न टू टेक एक्शन।